In previous classes, we covered almost all of our syllabus, and we are discussing about some clinical cases and implications. So, have you any query or any of the doubts regarding that, or should we continue further? Uh, to take treatment is not a problem, but to give treatment to all the vast area or vast zone of people, and especially in developing country like India, to give treatment facilities or to give proper guidance to the patient is very, very important, because quackery is still there. Many of the people, due to their benefits, misguiding the patients. So here, within the limits, or without misguiding patient, and to give a economical treatment is not a challenge for a doctor, but yes, it is required for a doctor. So just a minute. So in our pathy, or whatever the pathy you're practicing, just here we are supposed to make a balance between body and the nature in the natural way. If you are from the Ayurveda, by Tridosh and Saptadhatu Siddhant, you are balancing the mm, all the properties and giving the treatment. Or if you're using drugs, then with the एकल औषधि, start with the try to start with the एकल औषधि की एक ही ड्रग अगर sufficient है, then फिर बेसिक कॉम्पोजिशंस, जिसमें भी टेक्स्ट में, शास्त्र में जो बेसिक कॉम्पोजिशंस हैं मिनिमम कंपोनेंट्स के साथ, then if required, then go step further with the medicines of metallo-mineral drugs, or herbo-mineral drugs if it is required, and further go with the procedure which is smooth, and if required further increase the procedure, और जहां भी जरूरत है विद इन टाइम, मतलब स्टेप बाय स्टेप वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। ये नहीं कि सीधे जेट प्लेन वाला ट्रीटमेंट करना है। यस, डेफिनेटली फॉर द इकोनॉमिकल पर्पसेस इट इज इम्पोर्टेंट, बट जस्ट गो फॉर द पेशेंट, या फिर उसको बैलेंस करके, क्योंकि जिस चीज को जहां जितना बैलेंस चाहिए उसी वे में बैलेंस करेंगे तो वो एक पेशेंट फिर क्यू ऑफ पेशेंट लेके आएगा, तो वहां भी आपका बेनिफिट है ही। सो लेट्स डिस्कस केस ऑफ मेनोरेजिया। ये हिस्टेक्टमी इज वेरी कॉमन। अगर आप रूरल एरियाज में देखेंगे तो मतलब अगर पेशेंट आ रहे, अगर मेनोरेजिया की कंप्लेन या लिकोरिया की प्रॉब्लम्स, मतलब बेसिक सिंपल ट्रीटमेंट में भी ड्यू टू द मिसयूज ऑफ प्रैक्टिस, तो हिस्टेक्टमी इज वेरी कॉमन। तो उस पे एक फाइनेंशियल लोड तो पड़ता ही है, एंड अननेसेसरी वो सर्जिकल प्रोसीजर और उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। फर्दर एक ऑर्गन निकला यूटरस, इट इज organ related to the fertility, but even after the fertility many hormones are secreted, and many of other things are also there just to balance, और ये एक गैप आ गया तो फर्दर herniation की चांसेस भी हो सकती। so unnecessary removal of any organ is not supposed to be done. So here we are there to counsel the patient, to treat the patient, and to treat the patient with the basic steps. So let's continue. I'm going through a research article. Today we are going to discuss a research article. It's from the Kerala.
Obs-Gynae Department of Government Ayurved College, Tiruvananthapuram. That is case report on Ayurvedic management of perimenopausal bleeding. कि ये मेनोपॉजल एज के आसपास, उसके थोड़ा पहले, irregular bleeding due to any of the reasons, अगर कोई ऑप्शन नहीं है then definitely if it is life threatening तो अवॉइड भी नहीं करना है, हिस्टेक्टोमी करना ही नहीं. Yes, definitely go for the hysterectomy, but unnecessary hysterectomy is not supposed to be done. Here abstract is presented as a perimenopausal period is the transitional period where a woman passes from the reproductive to the non-reproductive stage. Abnormal uterine bleeding in the perimenopausal period counts for 70%. So the major function of the uterus is related to the reproduction. If it is going towards a non-reproductive organ, so is it okay to remove that part? No. And in many of the cases, that is very abnormal uterine bleeding is very common. And here the record says 70% of all the gynecological problems, sorry, most of the abnormal uterine bleeding in this period is due to endometrial abnormalities. In Ayurveda, the condition can be correlated to Asrigdar. We call Asrigdar uterine linings replicate very rapidly, and that blood circulation is increased towards that organ. पित्त की प्रधानता हो जाती है, कैन से. तो उसमें पित्त को कंट्रोल करते हुए और दोष क्षय जो हो रहा है, तो उस दोष को बैलेंस करना है, जो डिप्लीशन हो रहा है उसको फुलफिल करना है. तो ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए. So this is the case report of a 54-year-aged lady who presented with complaints of excessive bleeding and frequent menstrual cycles since 3 months. Investigation were done to rule out any malignancy. Yes, it is very important. ये bleeding case is there. आप उसको proper treatment दो, पित्त शामक treatment दो, and दोष जो depletion हुए उसको भी fulfill करो. But कहीं कोई malignancy तो नहीं है, वो rule out करना भी important. And it is advised after 40 years, you can say, or during the perimenopausal phase of the complications of menorrhagia or AUB, DUB is there, then rule out any of the malignancies there or not. So USG report shows endometrial hyperplasia of 17 mm with bulky uterus, and pap smear and colposcopy report shows inflammatory and CIN1 changes with HPV flat lesions respectively. तो ये हम लोगों ने केस रिपोर्ट्स इसकी डिस्कस की. तो is that means there is no malignancy, and bleeding stopped after 2 weeks of internal medication. Sorry. USG after 6 months showed significant reduction in endometrial thickness, and pronounced changes were also seen in pap smear and colposcopy findings. तो ये केस रिपोर्ट्स थी इसकी, एंड जो चेंजेस हैं वो जस्ट एब्स्ट्रैक्ट में दिया है. तो here we go to the introduction. Perimenopause refers to the period of 3 to 4 years before menopause and followed by 1 year of amenorrhea. तो menopause के 3 to 4 years पहले से लेके till amenorrhea is perimenopausal, वो जो transitional period होता है, hormonal changes होते हैं, and other body changes are also there in the reproductive organs. In some women, menopause may be delayed beyond the age of 50. The perimenopausal period is associated with mild ovarian hormonal deficiency, leading to anovulation and menstrual disorders, especially menorrhagia. तो ये एनोवुलेटरी साइकिल होती रहती है. एज वी स्टडीड अबाउट द ओवेरियन रिजर्व्स, तो वो धीरे धीरे डिप्लीशन की ओर जाता है, और फिर वो डिप्लीट होते होते एनोवुलेटरी साइकिल्स होती है, एंड साइमल्टेनियसली द फीमेल गोज थ्रू द मेनोपॉजल फेज. और पहले तो 50 तक होता था, बट ड्यू टू द चेंजेस इन द सोसाइटी, इन लाइफस्टाइल एंड डाइट, आफ्टर 40 एनी टाइम, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, यू कैन सस्पेक्ट कि 40 के बाद इस तरह की रेगुलरिटीज आ रही है. आप हार्मोनल लेवल्स देखेंगे या बाकी फाइंडिंग्स देखेंगे, तो इट में गो टुवर्ड्स द पेरीमेनोपॉजल फेज.
सो ऐसा मतलब कि जरूरी नहीं कि 50 के अराउंड ही ये सस्पेक्टेड है, 40 के बाद 40-45 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर शुड बी सस्पेक्टेड इन every perimenopausal woman with abnormal uterine bleeding. The overall incidence of endometrial cancer is approximately 0.1% of women per year, but in women with abnormal uterine bleeding, it is about 10%. तो इन जनरल कैंसर की चांसेस, एंडोमेट्रियल कैंसर की चांसेस काफी कम है, अप्रोक्सीमेटली 0.1%. बट अगर ब्लीडिंग वुमेन की रेशियो में देखा जाए तो इट इज अबाउट 10%. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट if any malignancy is there. And unopposed estrogen exposure is significant risk factor, whereas prolonged exposure causes endometrial proliferation and potentially endometrial carcinoma. तो ये एस्ट्रोजन पिल्स वगैरह देख जो रहते हैं in irregularities, so it may exposes for that. And other factors influencing estrogen exposure includes obesity, PCOS, anovulation, nulliparity. Type 2 diabetes mellitus increases the risk of endometrial cancers. तो ये conditions जो है risk को बढ़ा देती है endometrial cancer के. Hence spontaneous bleeding, menorrhagia और heavy irregular bleeding in perimenopausal period are considered abnormal and should be investigated for malignancy of genital tract. तो वो एज ग्रुप की फीमेल है एंड डिसफंक्शनल ब्लीडिंग है, तो ये रूल आउट करना जरूरी है. एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग इज अ वेरी कॉमन क्लिनिकल प्रॉब्लम and accounts for 70% of all the gynecological visits by perimenopausal and postmenopausal women. तो एक मैटर ऑफ कंसर्न यही रहता है कि वो डायरेक्टली फीमेल आपके पास नहीं आएगी कि मेरे कैंसर के चेकअप्स कर दो, या सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न इस पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स का इज एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग. एंड इफ इट इज आफ्टर द मेनोपॉज, तब तो फिर एकदम ही अलार्मिंग है. The pattern of abnormal bleeding in perimenopausal women present in various forms as menorrhagia, polymenorrhea, metrorrhagia and menometrorrhagia. ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए हुए, आप रिकॉल करिएगा पुराने पुराने लेक्चर्स में. आप अगर कंफ्यूजन हो तो यू मे आस्क व्हाट इज menorrhagia, polymenorrhea, metrorrhagia and menometrorrhagia. एंड नेक्स्ट क्लास में आप पुराने क्लासेस से आप गो थ्रू करेंगे, स्पेशली आई थिंक फिजियोलॉजी के जो क्लासेस इससे रिलेटेड थे, तो उसमें ये आपको टर्म्स डिस्कस किए मिल जाएंगे. And these variations in bleeding pattern, particularly in extremes in reproductive period, are mainly due to endometrial abnormalities. The FIGO फेडरेशन ऑफ गाइनिनॉप्स जो है, तो उनमें पाल्म कॉइन क्लासिफिकेशन दी है कि जो एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग है, तो ये इसके लिए एक निमोनिक काइंड ऑफ बना है कि पाम कॉइन से रूल्स रूल आउट करते हैं कि रीजंस एक्सक्लूड कर सकते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं. Of abnormal uterine bleeding helps in clinical evaluation of pathological abnormalities and categorize the treatment methods of AUB in perimenopausal women. The investigation of AUB in perimenopausal age points out to the exclusion of malignancy. तो ये जो पाम कॉइन है, तो वो डिफरेंट कंडीशंस को लेके एक निमोनिक फॉर्म ऑफ बना हुआ है कि इस नॉट ओनली इन पेरीमेनोपॉजल बट इन एवरी वुमेन, अगर यूबी और ड्यूबी काइंड ऑफ कंडीशन है, कि क्या क्या रीजंस उसके हो सकते हैं. The investigation of AUB in perimenopausal age points out the exclusion of malignancy. Laboratory works up like blood count, which reveals blood dyskaryosis, blood sugar levels, cervical cytology for cervical lesions, endometrial study, ultrasonography, CA-125 are some of the basic investigations which need to be done. And medical management includes administration of hormones like norepinephrine, acetate combined OCPs, prostaglandins, synthetic inhibitors. तो ये अगर आप मॉडर्न साइड में जाएंगे तो ये फीगो के अकॉर्डिंग आपको क्लासिफिकेशन में पहले तो वो कैटेगराइज करेंगे कि क्या रीजन हो सकता है, कि एंडोमेट्रियल रीजन है, कि एनाटॉमिकल रीजन है, या वॉट एवर काइंड ऑफ रीजन. और साथ में उसके ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू जाते हुए
कि ब्लड में रिलेटेड कोई डिस्कैरियोसिस नहीं है या ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब तो नहीं है, क्योंकि इधर देखा कि डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा चांसेस है स्टेप बाय स्टेप अल्ट्रासाउंड करते हुए एंडोमेट्रियल स्टडी करते हुए CA-125 देख के भी एनी कार्सिनोमा रूल आउट कर देंगे। एंड फिर देन फर्दर दे ट्रीट विद द नॉरहेस्टेरोन एसीटेट या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स। तो ये बेसिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट जाता है। एंड ब्लीडिंग ज्यादा है तो उसको क्लॉटिंग फैक्टर्स एज एन एंटी फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स। एंड एट लास्ट अगर नहीं हुआ तो फिर प्रोसीजर्स लाइक DNC एंड एंडोमेट्रियल एब्लेशन ये and if then also it is not responding, then goes to hysterectomy are some of the surgical procedures designed for therapeutic purpose, and hysterectomy is the last option when all the conservative treatment fails. तो oral medications के थ्रू जाते हुए पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स जाते हुए तब भी कंट्रोल नहीं होता, तो एट लास्ट hysterectomy is done. And also the presence of endometrial hyperplasia and atypia on endometrial histology is an indication for hysterectomy. एक तो पहले स्टेप बाय स्टेप जाते पे भी अगर रिलीफ नहीं है देन गोस फॉर द हिस्टेक्टमी। अदर देन दैट कि अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है या सेल टाइप्स में एटाइपिया और एंडोमेट्रियल हिस्टोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करे मैलिग्नेंसी की तरफ, तो रिस्पॉन्ड होते हुए भी यू हैव टू गो फॉर द हिस्टेक्टमी because whole body is much more important than an individual part. But blind option for hysterectomy, even in the absence of endometrial cancer, may pose side effects for the women. But अगर ऐसी कोई malignancy या urgency या emergency नहीं है तो फिर hysterectomy is avoided and must to be avoided, क्योंकि फिर वो women को problem further problems में भी डाल देती है. So if there are options, then don't consider hysterectomy, but if it is required, then definitely go for the hysterectomy. In Ayurveda, the abnormal uterine bleeding can be correlated to the Asrigdar or brother. तो इन दो के अंदर क्लासिफाई बेसिकली करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत तदेव अति प्रसंगेन प्रवर्तम anritha. That is excessive flow or prolonged duration of bleeding in the menstruation period or even without the normal period of menstruation is called asrigdar. ये डिफाइन कर रही कि एक्सेसिव ब्लीडिंग अस्थिदर के अंदर आती है. एंड द ट्रीटमेंट प्रिंसिपल फॉर अस्थिदर कैन बी अडॉप्टेड फ्रॉम रक्त अतिसार, रक्तपित्त, रक्त अर्श और इवन फ्रॉम रक्त योनि चिकित्सा. तो ये अस्थिदर का क्लासिफिकेशन टेक्स्ट में सुश्रुत संहिता में कैसे है और उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स उन्होंने कहाँ से उठाए हैं. तो ये रेफरेंसेस बता रहे हैं कि ये रक्त अतिसार, रक्तपित्त बेसिकली वो कूलिंग इफेक्ट्स के जो होते हैं कि आपका रक्त क्यों डिस्टर्ब है, वो धातु पे जाता है, कि 7 धातुज हैं और जो 3 दोष है और पित्त दोष ये यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, तो इनको बैलेंस करने के लिए ये रेफरेंसेस बताए फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस. द चिकित्सा शुड बी फॉर्मुलेटेड आफ्टर असेसिंग द दोष प्राधान्य, कि पहले तो आपको दोष असेस करना है कि किसकी प्रधानता है. द प्रिंसिपल ऑफ स्तंभन चिकित्सा कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड आफ्टर डिटरमाइनिंग द आत्ययिक अवस्था, की अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सीधे हीमोस्टैटिक अप्रोच आपको नहीं अप्लाई करनी है. हाँ, बट इफ इट इज इमरजेंसी कि वो ब्लीडिंग के थ्रू चौक में जाने की कंडीशन आ गई तो फिर इमरजेंसी है, उसको आत्यायिक चिकित्सा के अंडर स्तंभन दैट इज वो ब्लड को सडनली स्टॉप करने के प्रोसीजर्स करने हैं. बट अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो उसको सडनली स्टॉप नहीं करना है. ये रक्त अतिसार, रक्तपित्त, रक्ताश और रक्त योनि की जो चिकित्सा है ये अस्रिगदर के अंडर लेते हुए वैसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में चलना है. तो इस रिपोर्ट में इन्होंने जो 54 ईयर्स की फीमेल में डिस्कस किया है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज तिरुवनंतपुरम में, that complaining of frequent menstrual cycles since 3 months, she had a history of excessive and prolonged menstrual bleeding up to 14 days. 14 days तक इसकी bleeding phase चलता है. On USG, she was detected with increased endometrial thickness and bulky uterus. She underwent TNC. Histopathological report showed simple hyperplasia endometrium without atypical की hyperplasia but atypical cells नहीं है. But even after the surgery, she found no relief in bleeding pattern.
तो इसकी डीएनसी हो चुकी है। एंड देन ऑल्सो रीडिंग पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। शी वॉज एडवाइज्ड फॉर हिस्टेक्टोमी एंड सीकिंग एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की अप्रोच टू द ओपीडी। एंड इसकी सिस्टर को भी सेम कंप्लेंट्स थी। तो पहली बार में इनको क्या मेडिसिन चलाई गई? महातिक्तम कषाय, पुष्यानुक चूर्ण एंड अर्जुन शीरपा। और इसके डोज बताया गया महातिक्तम कषाय के 90 ml 0 to 90 ml बिफोर फूड एंड पुष्यानुक चूर्ण 1 tablespoon BD डोज में with honey and rice water and Arjun Shirpa 30 grams stem bark of Arjun boiled in 4 glass of water and 2 glass milk reduced to 1 glass and taken 1 hour before food once daily। तो ये ओडी डोज में था। तो इससे जो है कि पुष्यानुचूर्ण टू इन सम एक्सटेंट दोष को धातु का पोषण करते हुए वो दूसरे और वात को बैलेंस करते हुए कहीं आता है। तो एंड ड्यूरिंग सेकेंड विजिट ब्लीडिंग स्टॉप्ड आफ्टर 14 days ऑफ मेडिकेशन। शी वॉज एम आई ऑडिबल? एडवाइस्ड फॉर यूनिपिचो। तो ये पहले ओरल मेडिकेशन दिया गया, फिर उसके बाद साथ में यूनिपिचो भी ऐड किया गया फॉर 7 days विथ चात्यातिक्रिय। तो अर्जुन शीरपाक, पुष्यानुक चूर्ण और साथ में चंदन आसा और रसगंधी मेचुको ये ऐड किया गया और साथ ही यूनिपिचो जात्याधिकृत से दिया गया। Unipichu with Jatyadigrit was done for 2 more consecutive months, 7 days each. And after the bleeding stopped, Unipichu 2 महीने तक कंटिन्यू किया गया। मंथ्स का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन था। यूट्रस मेजर्स अबाउट 8.2 by 5.4 by 5.2 सेंटीमीटर। मायोमेट्रियम अपीयर्स होमोजेनस। ये नॉर्मल यूट्रस की साइज क्या होती है ये एनाटॉमी के लेक्चर में है, गो थ्रू दैट। या किसी को याद है तो यू में किसी को याद है नॉर्मल यूट्रस की साइज? मायोमेट्रियम होमोजेनस था। एंडोमेट्रियल थिकनेस 2.5 mm इनकी यूएसजी रिपोर्ट्स में थी। 3 to 1 in inches and in centimeters। what was that? just convert the unit। कंप्लीट हिस्ट्री लेने पे पास्ट हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक नहीं था। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में 13 years पे मिनार की 14 days ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, इंटरवल 15 days रहता है, दैट मीन्स 31 days साइकिल एंड 7 to 8 pads per day। मेनोरेजिया की कंडीशन है। क्लॉट्स आर प्रेजेंट, डिस्मेनोरिया इज नील एंड प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में लोअर एब्डोमिनल पेन एंड लोअर बैक एक, नो वजाइनल डिस्चार्ज, marital age is at the age of 20 years, no dyspareunia or no contraception, gravida 2, para 2, no abortions, 2 live birth, full term normal delivery, surgical history में DNC due to this case only, histopathological report showed simple hyperplasia, endometrium without atypia। ये कुछ चीजें मैंने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। पर्सनल हिस्ट्री को देखा जाए तो बबल कॉन्स्टिपेशन है, एपेटाइट एंड ब्लैडर इज नॉर्मल एंड डाइट इज मिक्स्ड काइंड ऑफ। पित्त डिस्टर्ब है तो डाइट एंड बॉवल भी डिस्टर्ब रहेगा। एपेटाइट बट इन दिस केस इट इज ओके, दैट्स गुड सिग्नल, साइन दैट is okay। and sour and spicy tastes are preferred, sleep pattern less and allergic by cold and dust। in USG findings, anteverted uterus bulky, measured 108 by 56 by 80 mm, and endometrium by 17 mm, left ovary simple cyst। and blood investigation में everything was normal। pap smear में inflammation with negative for intraepithelial lesions for malignancy। colposcopy में देखने पे CIN first grade changes और HPV flat lesions are there। तो पहली विजिट में महातिक्तक कषाय, पुष्यानुक चूर्ण, अर्जुन शीरपाक दिया गया। सेकेंड विजिट में अर्जुन शीरपाक, पुष्यानुक चूर्ण, चंदनासव और रसगंधी में और साथ ही
आफ्टर एवरी ब्लीडिंग साइकिल जाति अधिकृत के पिचू दिए गए। तो रिजल्ट्स में abnormal bleeding from the genital tract is always problematic for women, especially in perimenopausal age। वो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था प्रॉपर 6 मंथ्स का चला और पिचू का ट्रीटमेंट 3 मंथ्स तक दिया गया। तो दैट इज केस हिस्ट्री। और इसके रिजल्ट्स को देखें तो ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। एंड मैनेजमेंट शुड बी इन सच अ वे दैट कंसिडरिंग द बल ऑफ दोष वय काल एंड बल ऑफ द रोग, कि उस पेशेंट की क्या एज है, उसका क्या बल है, जो उसमें दूष्य डिस्टर्ब हुए हैं वो किस लेवल पे है, वो प्रॉपर हिस्ट्री से और पेशेंट की कंडीशन से अंदाजा लगेगा। एंड द रिपोर्ट्स विल फर्दर हेल्प और सपोर्ट फॉर दैट। और काल क्या है और रोग का भी बल क्या, मतलब कि कितनी सीवियर डिजीज है, कि लाइक पेप्समियर इन सब की रिपोर्ट से या पेशेंट की जनरल कंडीशन से या नंबर ऑफ पैड्स से, ये सारी चीजें रोग के बल को भी इंडिकेट करती हैं। सो एज द पेरिमेनोपॉजल एज इज द पीरियड अप्रोचिंग टू द धातु क्षय अवस्था, तो इस समय बॉडी जो है डिप्लीशन की तरफ जाती है, तो धातु क्षय की अवस्था रहती है। तो स्पेशल केयर हैज टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट ऑफ डोज। एंड टू एड द अर्जुन चिल्पक एंड ऑल दीज थिंग्स आर हियर। ये धातु क्षय अवस्था को बैलेंस करेगा, साथ ही साथ उधर डिजीज में भी हेल्पफुल रहेगा। And the nature of the disease. As the incidence of carcinoma is increasing day by day, treatment protocol has to be designed after excluding the malignancy। ये चीज बहुत जरूरी है। यस, डेफिनेटली आप बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करते होगे, बट फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट एंड फॉर योर सेक ऑल्सो, just exclude all the malignancies. Asrikdar is a disease caused by आवरण of अपान वायु by पित्त। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बात is important in especially in these kind of disease। lower जेनेटल ट्रैक्ट रिलेटेड है तो बात कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई, और उसमें बात क्या क्या पित्त से आवृत हो गया है, तो उसके इफेक्ट से वो ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। इज वन अमंग द रक्त प्रदोषज विकार। और ये एक तरह का रक्त विकार भी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं धातु के प्रॉब्लमेटिक है। तो कंसिडरिंग द एज एंड बल ऑफ द पेशेंट, रक्त स्तंभन वाज इनिशियली अडॉप्टेड। पहले के जो फर्स्ट विजिट में दवा दी गई कि वो इतने लंबे समय से डीएनसी के बाद भी उसकी ब्लीडिंग कहीं इम्प्रूवमेंट नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं आपके इस स्टेज में जाता है। तो फर्स्ट विजिट में जो दिया गया डीजी ड्रग्स उनको, वो रक्त स्तंभन कर रहा था, कि बल भी पेशेंट का कम हो चुका था, एज भी वैसी थी। सो रक्त स्तंभन was initially adopted. The initial approach was to pacify the vitiated वात and पित्त दोष। वात पित्त को बैलेंस करना था, hence महातिक्त कषाय was given। It is पित्त कफ शमन, रक्त प्रसादन and having क्लेदा क्लेद हरत्व कर्म। तो वो कहीं ना कहीं क्लेद का भी जो था तो उसका भी कम कर रहा था। It helped in reducing the endometrial thickness and thereby reduces the excessive bleeding. And Pushenuk churn was administered to produce a स्तंभन action। तो यहाँ पे कैसे कैसे एक्शन हो रहा है, महातिक्त का पित्त को शमन कर रहा है और क्लेद को हटाते हुए वात को पैसिफाई कर रहा है और रक्त का भी प्रसादन कर रहा है। पुष्यनुक चूर्ण का तो डायरेक्टली स्तंभन एक्शन है ही। एंड बाय द वर्च्यू ऑफ कषाय तिक्त रस, शीतवीर, रुक्षगुण, कफनाशक प्रॉपर्टी, इट पैसिफाइज द ब्लीडिंग। तो इन सब के कारण वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर रही है, क्योंकि इसका शीतवीर है, एंटी ऑफ दैट रुक्षगुण है और कफनाशक प्रॉपर्टी है। और अर्जुन शीतपक वाज एडवाइज ड्यू टू द हीमोस्टैटिक एंड हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, और साथ ही वो बल भी प्रोवाइड कर रहा है। अर्जुन प्रोसेस कषाय रस, लघु रूक्षगुण, शीतवीर एंड इज रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो बृहत्रयीज हैव इंडिकेटेड द यूज ऑफ अर्जुन इन रक्तपित्त, अर्श, पुष्ट, प्रमेय आदि। तो ये रेफरेंसेस के थ्रू रक्तपित्त में यूज किया जा रहा है, और साथ ही उसके गुणों के कारण it has its own effects. During the second follow-up, द सेम मेडिसिन, और अर्जुन को भी अगर शीतपाक में देंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब अर्जुन आशा वरिष्ठ के फॉर्म में अगर देंगे तो वो आशा वरिष्ठ कहीं ना कहीं पित्त को इम्बैलेंस, मतलब थोड़ा सा पित्त बढ़ाते हैं,
तो आपको ड्रग के साथ साथ वो किस कल्पना में देना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने देखा होगा यहाँ पे डायरेक्टली अर्जुन आशा वरिष्ठ यहाँ नहीं दिया गया, और चूर्ण भी देते तो उसके इफेक्ट्स रहते, बट ये शीरपाक में has excellent effects. So during the second follow-up, same medicine was were repeated along with the addition of चंदन आसव। अब थोड़ा सा बैलेंस हुआ तो फिर वो चंदन जो है आसव फॉर्म में दिया गया। एंड राजगांधी में भी चंदन आसव इज नोन फॉर इट्स पित्त शामक एक्शन एंड रक्त प्रसादन कर्म। कि चंदन आसव का पित्त शामक और रक्त प्रसादन कर्म है। And Rasgandhadi Mejuku was given with a view of reducing the CIN1 change in its colposcopy analysis. और साथ में यूनिपिचू जात्याधिकृत से जो दिया गया was advised for 3 months with the duration of 7 days each. Drastic changes were found after the management. Bleeding stopped after 14 days of internal medication itself, and USG findings after the 6 months showed reduction in endometrial thickness from 17 mm to 3.5 mm, which was normal for the age, and also the regression of CIN1 changes to the inflammatory smear proves the effectiveness of the above management. तो ये आपको एक प्रमाण भी कह लीजिए, प्रत्यक्ष के रूप में एक प्रमाण मिल गया बाय दिस लैब इन्वेस्टिगेशंस। और साथ ही पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस भी कम हुए, कंडीशंस इंप्रूव हुई, एंड इन रिपोर्ट्स आल्सो द थिंग्स आर गोइंग better. Apart from all these proper पथ्य आहार विहार plays a key role in bringing the success to treatment। इसके साथ ही उसको do's and don'ts तो follow करने थे। Okay, so what's the conclusion? Hysterectomy should be primarily employed to save women from life-threatening gynecological problem and for better healthy life. 6% of women in 40s age group are unnecessarily opted for hysterectomy, definitely, and in rural areas where there is no awareness and practice is somewhat नॉट एज पर गाइडलाइंस, तो वहां पे तो ये 6% से कहीं ज्यादा होता है। But in general, 6% of the women in the 40s age group are unnecessarily opted for hysterectomy. One of the main reasons is excessive menstrual bleeding. The tendency for blind approach to hysterectomy is alarmingly increasing nowadays and should be changed by implication of new healthy strategic policies. The holistic approach of Ayurveda is an eye-opener in this field. The present case is also evidence of current problem. तो ये इन जनरल प्रॉब्लम अक्सर ये देखने को मिलती है, और ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से ऑर्डर ने लिए हैं। So this was the case, and I hope everything is clear. If any problem, you may ask.